Let's begin with the questions of clubbing of income. During the previous year 21-22, the following transactions occurred in respect of Mr. A. Mr. A has a fixed deposit of 5 lakhs in Bank of India. He instructed the bank to credit the interest on the deposit at the rate of 9% per annum from 1/4/21 to 31/3, that is financial year 21-22 ka interest, to the savings bank account of Mr. B, that is son of his brother, to help him in his education. Understand exactly a पूरे transaction में क्या हो रहा है. See, say for example, I have a fixed deposit of 5 lakh rupees in Bank of India. Of course, I will receive the interest on that particular FD. But I'm instructing the bank that please do not give me the interest on this fixed deposit, but please transfer this particular interest to Mr. B, who is a son of his brother. Here in this case, without transferring the asset, you are transferring the income to somebody else's name. And that's why, as per the clubbing provisions, even though the amount of interest is getting received by Mr. B, but still it will be clubbed in my hands. Even though it is received by Mr. B, but still it will be clubbed in my hands. अभी ये कौन से head of income के अंदर club होगा? It will be clubbed under IFRS. मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, ये ए के हाथ में. सेकंड इज मिस्टर ए होल्ड्स अ 75% प्रॉफिट शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म. Mrs. A received a commission that of 25,000 from the firm for promoting the sales of the firm. Mrs. A does not, Mrs. A possesses no technical or professional qualification. ये देखने के बाद एक बत्ती जलनी चाहिए that तीन कंडीशंस हम लोग ने देखे थे. कंडीशन नंबर 1, that I should be having a substantial interest in the company or a firm along with my relative. Second, that firm or a company should give some remuneration to my spouse, and spouse does not have a qualification. If these three conditions are satisfied, then whatever income my spouse is earning or getting from the company or a firm, that amount will be clubbed in my hands. फर्स्ट कंडीशन क्या था? मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए. यस, डेफिनेटली मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बिकॉज आई हैव मोर देन 20% ऑफ प्रॉफिट शेयर इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म. Perfect. Condition number 1 is fulfilled. Condition number 2, that the firm is giving some kind of remuneration to my wife. तो इधर कमीशन देने वाले है, फर्म कमीशन देने वाला है to my wife. तो second condition is also fulfilled. Third condition is my wife should not be having any professional qualification. Here, Mrs. A possesses no technical or professional qualification. Since these three conditions are satisfied, this 25,000 will not be taxed in the hands of Mrs. A. It will be taxed in the hands of whom? Mr. A. एकदम क्लियर है कि नहीं? परफेक्ट है. उसके बाद सी बात करते हैं. मिस्टर ए गिफ्टेड फ्लैट टू मिसेस ए ऑन 1 अप्रैल 2021. मेरे पास एक फ्लैट था. मैंने वो फ्लैट किसको गिफ्ट किया? मेरे वाइफ को गिफ्ट किया. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, मिसेस एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज कंप्यूटेड. मतलब क्या कंप्यूटेड? मतलब हाउस प्रॉपर्टी माइनस डिडक्शंस, वो सब करने के बाद जो फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है ना, दिस इज 52,000 फ्रॉम सच फ्लैट. एक मिनट, वापस बात करते हैं. मेरे पास एक फ्लैट था. आई गिफ्टेड दैट फ्लैट टू माई वाइफ. नाउ earlier I was earning income from that particular flat, but now since I have transferred that flat in my wife's name, my wife is earning that income from house property. अभी वो इनकम कितना है? वो इनकम है 52,000 रुपीज. इन दिस केस, इवन दो my wife is earning income, which means the flat is in the name of my wife, but still it will be clubbed in my hands because I will be considered as the deemed owner of that particular flat, because I transferred that asset without any adequate consideration. I gifted that flat to that person, that is my wife. My wife started earning income now. In this case, clubbing provisions will be applicable, and whatever amount which is received by my wife from that particular house, that is of 52,000, even though she is receiving it, but still it will be taxed in my hands. Clear ekdam? Yes. So this will be taxed in the hands of Mr. A. Perfect. उसके बाद है मिस्टर ए गिफ्टेड 2 lakhs to his minor son
who invested the same in the business and he derived the income of 20,000 rupees from an investment. Now who is earning the income? My minor son is earning the income. Now whenever minor son का हम लोग बात करते हैं, whenever we talk about minor son, you have to analyze कि वो जो income कमा रहा है minor son, is it falling under these three situations? Situation number one, uh, is he doing any manual work? Situation number two, is he applying any skills and talent to receive that particular amount? And situation number three, is there any disability? If he's following under these three situations and earning income, then in this case जो भी income वो कमाएगा वो उसके ही हाथ में टैक्स होगा, वो क्लब नहीं होगा. बट अगर वो जो पैसा कमा रहा है दैट इज नॉट फॉलिंग अंडर, और ही द माइनर इज नॉट फॉलिंग अंडर दीज थ्री सिचुएशंस, देन इन दैट केस जो भी वो पैसा कमाएगा इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स. It will be clubbed in the hands of his parents. The question is which parent? Which parent मतलब जिसका total income is higher. इन द प्रेजेंट केस उसका कुछ उन्होंने बात किया नहीं है, सो अज्यूम करेंगे वो जो 20,000 है वो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा और मेरे हाथ में उस पर टैक्स भरना पड़ेगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड, वेन एवर इन केस ऑफ माइनर, when we club the income in my hands, I will get one exemption of 1,500 per month or per child, per sorry 1,500 per annum per child. ओके, सो 20,000 क्लब तो हो जाएगा पर उसके बाद मुझे 1,500 का एग्जेम्पशन मिलेगा एंड अल्टीमेटली मेरे हाथ में कितना टैक्स होगा? 18,500. परफेक्ट. ओके, आगे बढ़ते. Mr. A's minor son derived an income of 20,000 through a business activity involving application of his skill and talent. Okay, in this case वो first three situation में fall हो रहा है. Why? Because he has derived the income by applying his skills and talent, and that's why 20,000 will be taxed in the hands of that minor son. परफेक्ट. उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए गॉट अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज. चलो ये तो सैलरी का इनकम मिल गया मुझे, 10,000 रुपीज. ही हैड नो अदर इनकम, ठीक है. मिसेस ए रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब. ठीक है, ये तो किसका इनकम हो गया? ये तो इनकम हो गया मिसेस ए का. ये 10,000 पर मंथ किसका? मिस्टर ए का. ठीक है. Examine the tax implications of each transaction and compute the total income of Mr. A, Mrs. A, and their minor child, assuming they do not wish to opt for Section 115 BAC. अभी हम लोग कैसे ये पूरा सिचुएशन डील करेंगे और पूरा क्वेश्चन के साथ डील करेंगे. अभी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम in the hands of Mr. A, Mrs. A, and minor. परफेक्ट. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर्स. रुपीज रुपीज. नाउ फर्स्ट मैं बात करूंगा इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए. सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी में उसका कुछ है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी इट इज 10,000 पर मंथ, सो इट बी 1,20,000. और कुछ इनकम फ्रॉम सैलरी मिस्टर ए का दिख रहा है क्या? देख लो. फर्स्ट कुछ नहीं है, फिक्स डिपॉजिट. सेकंड कमीशन है. तीसरा क्या है? तीसरा भी उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का बात किया है. उसके बाद बिजनेस का बात किया है, तो ये नहीं, तो इतना ही सिर्फ उसका इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा एंड आई विल गेट अ डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000. ओके, सो आई विल गेट द अमाउंट ऑफ कितना आएगा? 70,000. ओके, हाउस प्रॉपर्टी सेकंड.
वो वाइफ का हाउस प्रॉपर्टी था ना, सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना था, पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 पे 52,000 था, पर इट इज रिटन कंप्यूटेड, और इसकी वजह से मुझे और कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस, कौन से भी डिडक्शंस माइनस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं सीधा इधर लिख दूंगा 52,000। ओके, थर्ड वन इज कैपिटल गेन्स, तो कुछ नहीं है, पीजीबीपी भी कुछ नहीं है, तो सीधा मैं क्या लिखूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसका पहला है, देख, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितना आएगा, 5 लाख रुपीज इंटू 9%। कितना आएगा, 45,000। ओके, सो ये कंप्लीट हुआ, बाद में ये कंप्लीट हुआ है भी, और ये कंप्लीट हुआ है। ओके, आगे बाकी है 25,000 का कमीशन। 25,000 का कमीशन जो उसको मिला था ना, विदाउट क्वालिफिकेशन उसकी वाइफ को मिला था, वो मैं इधर ऐड करूंगा। Okay, so I think second point is also done. 1, 2, 3 done. थर्ड वन इज जो गिफ्ट दिया था और उसको जो पैसा मिला था, तो वो जो है हम लोग वो करेंगे ऐड। तो पहले हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये सब ऐड कर देते हैं। 25 प्लस 20, 45 प्लस 25 कम्स टू 70,000। सो अगर मैंने ये टोटल किया तो इट बी वॉट, 70 प्लस 70 कम्स टू 1,40,000। 1,40,000 प्लस 52, दैट इज 1,92,000। करेक्ट, प्लस में ऐड करूंगा इनकम ऑफ माइनर सन टू बी क्लब्ड। कितना, 20,000 लेस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10, दैट इज 1,500। बेसिकली टोटल कितना टैक्स होगा, 18,500। परफेक्ट है। सो दिस विल बी द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। अभी ये मैं ऐड करूंगा तो कितना आता है, 182, कितना आएगा ये, 192 प्लस 18,500, 2,10,500, बराबर है ना, 2,10,500, 2,10,500। परफेक्ट। उसके बाद हम लोग करेंगे इनकम, सॉरी, इन द हैंड्स ऑफ मिसेस ए। अभी मिसेस ए जो है, वो मिसेस ए का पॉइंट आता किधर है, मिसेस ए का पॉइंट देख किधर आता है, मिसेस ए का पॉइंट आता है नीचे 20,000। मिसेस ए रिसीव्ड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब, उससे उसको 20,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। सो इधर आएगा 20,000 पर मंथ, विच विल कम टू, इधर लिखता हूँ सैलरी, 20,000 इंटू 12, 2,40,000 लेस deduction under section, sorry, 16, this will come to minus 50,000
This will be 1,90,000. Is there any other income of Mrs. A? Can you see any other income of Mrs. A? No. There was one income of commission, but this that got clubbed. So इसलिए इधर कुछ नहीं है. So ये होगा 1,90,000. Perfect. और माइनर सन का याद है क्या? और एक है सम और एक ट्रांजैक्शन है इन द हैंड्स ऑफ माइनर. सॉरी, इन द हैंड्स ऑफ माइनर किधर गया? सो ये भी डन. 18.5 इज ऑल्सो डन. हाँ, ये 20,000. पॉइंट नंबर ई का बात कर रहा हूँ मैं. पॉइंट नंबर ई में देखो, मिस्टर एज माइनर सन डिराइव्ड एन इनकम ऑफ 20,000 थ्रू अ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल्स एंड टैलेंट. उससे कुछ उसको पैसा मिला. इन दिस केस दैट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट माइनर सन हिमसेल्फ एंड दैट विल बी 20,000. And this is how you will compute the income. And उसके बाद ये whenever you'll write it in the exam में लिखोगे तभी सबका एक एक सिर्फ वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा in your own words. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, in your own words लिखो कि क्या क्लब किस में क्या होने वाला है. ठीक है. So this is how we discuss this question number 2. I hope you are clear with this question 2. We'll move ahead with question number 4. एक बार 4 से स्टार्ट करते हैं. A proprietary business was started by Srimati Rani in the year 2019. Okay, proprietary business start किया. As on 1/4/2020, her capital in the business was 3 lakh rupees. मतलब 1/4/2020 को उसका capital कितना था? 3 lakh rupees. Her husband gifted 2 lakhs on 10/4/2020. Okay, कभी गिफ्ट किया? 10/4/2020. मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जो हस्बैंड ने पैसा दिया था 2 लाख रुपया, वो उसके पास नहीं था. वो उसके ओपनिंग कैपिटल में नहीं था. मतलब एक चीज तुम लोग को समझना चाहिए, उसके ओपनिंग कैपिटल में मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के ओपनिंग कैपिटल में मैंने अब मेरी वाइफ को जो भी 2 लाख रुपए का गिफ्ट दिया था वो ओपनिंग कैपिटल में नहीं था. मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में कुछ भी तुझे क्लबिंग नहीं दिखने वाला है, वो गिफ्ट के रिलेटेड. परफेक्ट है. ओके. नाउ हर हस्बैंड गिफ्टेड 2 lakhs on 10/4/2020 to her and such sum is invested by श्रीमती रानी in her business on the same date. मतलब 10/4 को दिया. परफेक्ट. नाउ मैंने जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था वो याद करो, एकदम सिमिलर है. श्रीमती रानी earned profits from her proprietary business for the financial year 2021. ठीक है. रुपीज 1,50,000 एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट इज 3,90,000. मतलब प्रॉफिट्स दिए हैं. 2021 का प्रॉफिट है 1,50,000. ओके. एंड 21-22 का प्रॉफिट है 3,90,000. Perfect. Okay. Compute the income to be clubbed in the hands of Rani's husband for assessment year 22-23. मतलब क्या? Financial year 21-22. See, एक बात समझो, दैट फाइनेंशियल ईयर 2021 का वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं. ये फाइनेंशियल ईयर का बात ही नहीं कर रहे हैं. इसमें क्लब कितना होगा ये हम लोग को समझना चाहिए कि 2021 में क्लब होने के लिए पहले जिसका बिजनेस है उसके ओपनिंग कैपिटल में मेरा ट्रांसफर्ड अमाउंट गिफ्टेड अमाउंट होना चाहिए. बट मेरे वाइफ के ओपनिंग कैपिटल में मेरा गिफ्टेड अमाउंट नहीं था एंड दैट इज वाई 2021 में जो भी तुझे प्रॉफिट अर्न हुआ है वो प्रॉफिट कभी भी तेरे हस्बैंड के हाथ में क्लब नहीं होगा. उतना प्रपोर्शन गिफ्ट का प्रपोर्शन. ओके. तो कौन से ईयर में क्लब होगा? ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर में ना, बिकॉज 10/4/2020 को जो तूने दिया था पैसा, 10/4/2020 को जो तूने पैसा दिया था वो कहने से ये साल के ओपनिंग कैपिटल में नहीं था, पर कहने से नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग कैपिटल में होगा डेफिनेटली. एंड दैट इज वाई फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो ओपनिंग कैपिटल था उसमें था कि नहीं? यस. देन इन दैट केस proportionate amount of 3,90,000 rupees will be clubbed. प्रोपोर्शनल अमाउंट, प्रोपोर्शन थोड़ा सा प्रोपोर्शन 3,90,000 का मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग ये कंप्यूट कैसे करें. सी, उन्होंने ओपनिंग कैपिटल दिया है लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है. बराबर है. सो 3 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल
उसके बाद मैंने जो गिफ्ट दिया था जो 2 लाख रुपए, ओके, एंड देर इज वन मोर थिंग, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, कैन आई से वो भी कैपिटल में आ जाएगा? 1,50,000, यस। सो बेसिकली मेरा टोटल, मेरे पास कितना पैसा है? 6,50,000 रुपीज। 6,50,000 रुपीज मेरा टोटल पैसा मेरे पास अवेलेबल है। एकदम क्लियर है कि नहीं सबको? सबको एकदम क्लियर है? ओके। अभी एक पॉइंट समझना, आई यूज्ड 6,50,000 टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 3,90,000। I used the I used the amount of 6,50,000 to earn the profit of 3,90,000. Now can I say कि अगर 6,50,000 के लिए 3,90,000 प्रॉफिट है, तो 2 लाख के लिए कितना होगा? सो 6.5 lakhs is 3,90,000. Then 2 lakhs is how much? This is the proportionate profit which will be clubbed in the hands of her husband. अभी देखते कितना होगा? 2 lakhs into 3.9 upon 6.5, which will be 1.2, 1,20,000 rupees. So 1,20,000 will be the amount which will be clubbed in the hands of her husband, because the amount which her husband had given to that particular wife, it was not appearing in the opening capital of the first year, but it is appearing in the second year's opening capital. इसीलिए हम लोग ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्लबिंग नहीं किया. We did the clubbing in financial year 21-22, and out of 3,90,000, that since my wife used those 2 lakh rupees in doing the business, and since she earned 3,90,000 out of it, of course 3,90,000 will not be clubbed in my hands, but proportional amount, मतलब 3,90,000 में से थोड़ा सा अमाउंट, जितना 2 लाख रुपीज के प्रपोर्शन में है, उतना अमाउंट विल बी क्लब्ड इन माई हैंड्स. तो वो कैसे निकाला? 6,50,000 अगर मेरा टोटल कैपिटल होगा, तो वो कैपिटल से मुझे मिला 3,90,000, तो सिर्फ 2 लाख होगा तो कितना मुझे मिलेगा? सो 1,20,000 इज द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा. See, therefore, the income to be clubbed in the hands of Srimati Rani's husband for assessment year 22-23 is 1,20,000 rupees. ओके, तो ये लिखना कैसे है? ये लिखना कैसे है भाई? ये लिखना कैसे है? एकदम आराम से लिखेंगे, कुछ भी टेंशन नहीं है. पहले फैक्ट्स लिखेंगे. दैट, अभी पहले हस्बैंड वाइफ उनका नाम क्या देखते हैं? श्रीमती रानी एंड हस्बैंड. श्रीमती रानीज husband gifted 2 lakhs to Srimati Rani on 10/4/2020. As per the provisions of the Income Tax Act 1961, if the assessee or any other asset to his spouse, and if the spouse invests it further in the business as capital, then the proportionate profit earned during
The financial year would be clubbed in the hands of that husband. However, the gifted amount should be included in the opening capital of such business. In the present case, amount of 2 lakh is not included in the opening capital of the clubbing provisions would not be applicable for financial year 2021. However, such gifted amount is included in the opening capital of the next financial year, and hence proportionate profit earned during the next financial year, that is financial year 21-22, would be clubbed in the hands of her husband. Total capital during financial year 21-22 is equal to 3 lakhs उसका ओपनिंग था, प्लस 2 लाख उसने गिफ्ट किया, प्लस 1,50,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट, so which will come to rupees 6,50,000 rupees. Therefore, amount to be clubbed is equal to, अभी उसका प्रॉफिट कितना था नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कुछ 3,90,000 था ना प्रॉफिट. अभी हम इधर जाएंगे 3,90,000. अभी प्रोपोर्शनेट निकालना है 2 lakhs, पूरा लिखो 2 lakhs मत लिखो, अपॉन 6,50,000. So I will get the figure of
1,20,000 amount to be clubbed in financial year 21-22. This is how you can write the answer. See, you can write the answer in your own language, no problem, but your concept should be clear. The examiner should understand that you have used the correct provisions before coming to the करेक्ट आंसर, राइट. सिर्फ आंसर करेक्ट होके नहीं चलेगा, तुझे प्रोविजन भी बराबर लिखना इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग ने प्रोविजन अपने लैंग्वेज में लिखा. इट इज ओके, वी हैव यूज द टेक्निकल वर्ड्स, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. एकदम क्लियर है. आई होप यू आर अंडरस्टूड, यू आर क्लियर विथ दिस पर्टिकुलर पार्ट. Question number 4, and I'm going to take one more question now. Let's begin in 2 minutes. Let's start with illustration 8. Very simple and last question for clubbing of income. Compute the gross total income of Mr. A and Mrs. A from the following information. निकालना क्या है? GTI निकालना है Mr. and Mrs. A का. ठीक है. फर्स्ट, सैलरी इनकम कंप्यूटेड, मतलब तुझे कुछ भी नहीं करना है इसको. 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस बिनस कुछ नहीं करना है, ठीक है ना. 2,30,000. देन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ए इज 3,90,000. ठीक है. मिसेस ए का कुछ मिला एंड मिस्टर ए का भी कुछ मिला. इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट. प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे समझा कि माइनर ने कुछ 15,000 रुपए कमाया फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट. नाउ इट विल डेफिनेटली बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स. ये भी सर हम लोग को समझ गया कि पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा बिकॉज वो कंपनी डिपॉजिट का पैसा है. नाउ द क्वेश्चन इज कौन से पेरेंट के हाथ में? इट विल बी क्लब्ड इन हुज हैंड्स? मिस्टर ए और मिसेस ए. To answer this question, we need to first identify kiska other income is higher, whose other income is higher. Now, Mrs. A ka income is 2,30,000 and Mr. A ka income is 3,90,000. Whose income is higher? Mr. A's income is higher, and that's why 15,000 will be clubbed in the hands of Mr. A. Perfect. Now, इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट. उसने कुछ स्पेशल टैलेंट से पैसा कमाया है 32,000. इन दिस केस, इवन दो द माइनर इज अर्निंग दिस इनकम, बट स्टिल इट विल नॉट बी क्लब्ड. इट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट माइनर चाइल्ड ओनली और माइनर डॉटर ओनली. परफेक्ट है, इस पे क्लबिंग नहीं लगेगा. नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन अ डिपॉजिट मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बेसिकली ये ट्रांजैक्शन की वजह से मैं पूरा सम कर रहा हूँ बिकॉज ये अच्छा पॉइंट है. देख, ये इधर सी है, ये डॉटर है. उसने कुछ समझो डांस इंडिया डांस में जाके मस्त नाच के थोड़ा सा पैसा कमाया. विनर, शी इज द विनर ऑफ डांस इंडिया डांस एंड शी गॉट सम 3 लाख रुपीज. अभी ये जो 3 लाख रुपीज सी को मिला ना, देन दिस 3 लाख रुपीज विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ सी ओनली बिकॉज इट इज द अमाउंट इज रिसीव्ड ड्यू टू स्पेशल स्किल्स एंड टैलेंट्स. ओके, अभी सी ने क्या किया मालूम है? यही जो 3 लाख थे ना, ये इन्वेस्ट कर दिए बैंक ऑफ इंडिया में. बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया और बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करने के बाद बैंक ऑफ इंडिया से उसको इंटरेस्ट मिला, समझो 30,000 रुपीज का. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो 30,000 रुपीज है वो सी के हाथ में टैक्स हो जाएंगे या विल इट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स? यू ओनली थिंक एंड टेल मी. 3 लाख रुपए कैसे आए थे? स्पेशल टैलेंट से आए थे. वो स्पेशल टैलेंट के पैसे बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करके रखे. फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला 30,000. 30,000 इंटरेस्ट कैसे मिला है? 3 लाख से मिला है. 3 लाख कैसे मिला है? 3 लाख मिला है स्पेशल टैलेंट से. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो 30,000 इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड, इट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ सी ओनली or will it be clubbed in the hands of her parents? Now, बहुत लोगों को लगता है कि since 3 लाख रुपीज इज जनरेटेड, ये 3 लाख सॉरी 30,000 रुपीज जो जनरेट हुआ है वो स्पेशल टैलेंट से हुआ है, इसके लिए वो सी के ही हाथ में टैक्स होना चाहिए. अरे भाई नहीं, भाई नहीं, ये सी के हाथ में टैक्स नहीं होगा बिकॉज यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इनकम. नेचर ऑफ इनकम क्या है? नेचर ऑफ इनकम है इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट. इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, ये 3 सिचुएशंस में फॉल होते हैं. क्या फर्स्ट सिचुएशन क्या है? मैनुअल वर्क. सेकंड सिचुएशन क्या है? स्किल्स एंड टैलेंट. थर्ड सिचुएशन क्या है? डिसेबिलिटी. ये तीनों में फॉल होता है क्या? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. नो, एंड दैट इज व्हाई 30,000 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स. It will be clubbed in the hands of the parents. Please do not get confused. अरे वो 30,000 के लिए 3 लाख किधर से है? हम लोग को क्या फर्क पड़ना है? यू अंडरस्टैंड पड़ता है. यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इनकम, नो?
What is the nature of income for C right now? There are two nature of incomes. एक है 3 लाख रुपए का, हम लोग को मालूम है 3 लाख रुपए क्लब नहीं होंगे, एंड वो सी के ही हाथ में टैक्स होंगे. और जो 30,000 है ना, वो डेफिनेटली क्लब होंगे, सी के हाथ में टैक्स नहीं होंगे, बिकॉज द नेचर ऑफ इनकम इज नॉट स्पेशल टैलेंट और बाय स्पेशल टैलेंट. 30,000 रुपीज का नेचर ऑफ इनकम इज फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, एंड दैट्स व्हाई 30,000 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स. परफेक्ट है एकदम अच्छे से. ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन डिपॉजिट, ये अभी हुआ अपना. उसके बाद है गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी, मतलब माइनर ने कुछ गिफ्ट रिसीव किया ऑन 39/2021 फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ मिसेस ए. ठीक है, मतलब जो भी गिफ्ट मिला है, दैट अमाउंट इज 2,500. इट इज नॉट मोर देन 50,000 रुपीज, एंड दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सो अगर मुझे आपने पूछा कि मिसेस ए के हाथ में कितना टैक्स होगा, तो मुझे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन दिख रहा है 2,30,000 का. मिसेस ए के हाथ में 2,30,000 टैक्स हो जाएंगे. अभी मिस्टर ए का बात करते हैं. मिस्टर ए के हाथ में क्या है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 3,90,000 है ही. परफेक्ट. उसके बाद है इनकम ऑफ अ माइनर सन फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट 15,000, बट 15,000 विल नॉट बी टैक्स्ड. इट हाउ मच विल इट बी टैक्स? How much will it be taxed? 15 minus 1,500, that will be 13,500. So 13,500 is the amount. ओके. उसके बाद है स्पेशल टैलेंट से 32,000 मिला, वो कुछ भी क्लबिंग नहीं होगा, तो बिंदास. उसके बाद 3,000 है, पर 3,000 में भी 1,500 का डिस्काउंट क्या बोल रहा हूँ, 1,500 का एग्जम्पशन मिल जाएगा. नाउ द पॉइंट इज, इधर जो ऊपर 1,500 मिल रहा है, वो 13,500 क्यों मिला? बिकॉज वो सन बी का था, और नीचे जो मैं क्लबिंग कर रहा हूँ वो सी का कर रहा हूँ. तो 1,500 जो है ना, वो पर चाइल्ड मुझे एग्जेम्पशन मिलता है. सो सी बी के लिए ऊपर एग्जेम्पशन लिया 1,500 का, एंड सी के लिए नीचे एग्जेम्पशन लिया 1,500 का. एकदम क्लियर है. सो मेरा बी ए का कितना आंसर आएगा बता जरा. 3,90,000 प्लस 13,500 and plus 1,500. Is it 4 lakh? Barabar. Is it 4 lakh 5,000 rupees? Definitely, it is 4 lakh 5,000 rupees. And this was the point which I wanted to discuss from clubbing of income. I hope you are clear with all the questions which we discussed from clubbing of income. I will see you in the next lecture. Till then, bye bye, see you and take care.